Yeah, okay. So we are looking into the security types, and first type is debt securities. Okay, uh, we call it bonds as well. So next जो अभी हम देख रहे हैं वो है types of debt securities or bonds. As a matter of fact, types of bonds. So first bond जो type है the defined by the issuer. Okay, so bonds issued by companies, bond issued by companies are referred by as a corporate bond. ये मैंने कभी बताया था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो हम उसे कहेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड, कोई भी कंपनी. एंड द बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, या फिर म्यूनिसिपल भी ले लीजिए, म्यूनिसिपल के भी बॉन्ड्स होते हैं. तो these are all the government's bonds category. Okay, so we have two categories of bonds. Those are corporate bonds and government bonds. Okay, so and the market, the primary market is where new securities are issued and sold to investors, and in the secondary market investors trade with other investors. So the bonds which are issued in the primary market means directly from company to investor. So what is the process of buying bonds in primary markets? It's a whole other thing. Okay, so we are going to look into that when we when we will look into the stock market basics. हम वहां पर देखेंगे उसे. Okay, so what happened in primary market? The bonds directly issued from company to investor, and in the secondary market means stock market, we buy in bonds from other investor, not from company, from other investor. Okay, this is the main difference in primary and secondary markets, and where we sell or buy a bond. Then types of bond with respect to coupon rates means interest rates. What are those categories? So first one is fixed rate bonds. The interest rates of this bond is fixed throughout the period, means throughout up to maturity date. Okay, so means if I buy a corporate bond from the company with the interest rate of 8%, so the 8% coupon rate or interest rate I will receive from 1 year to the last year. Means it could be a okay. The second one is floating rate bonds. Means the bond rates are changing frequently. So I think floating rate bonds. In the next slide, we have some detail for the floating rate bonds. Then other one is zero coupon bonds. Don't take it as a zero interest rate. Okay, जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि जीरो इंटरेस्ट रेट है, ये मत समझिए. जीरो कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है, जो कूपन पेमेंट है, वो डायरेक्टली आपको आखिर में मिलता है. मींस मैच्योरिटी पर मिलता है. जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, मैच्योरिटी डेट आएगी, उस दिन आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट दोनों एक साथ मिलेंगे. और फिक्स रेट में क्या होता है कि आपको हर 6 महीने में आपका कूपन पेमेंट मिलता रहता है. तो ये टाइप्स है बॉन्ड एज इश्यूअर के हिसाब से कौन से टाइप्स है, मार्केट के हिसाब से और
कूपन रेट्स के हिसाब से। सो नेक्स्ट, these are the some example of fixed rates bonds। तो ये बॉन्ड है वॉल्ट डिज्नी कंपनी के, इसका मतलब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है। ओके, 2011 में ये इशू करे गए, 2011। So if you see 3 types of bond issued by the Walt Disney Company: 5-year bond, 10-year bond, and 30-year bond. Okay. Actually, we cannot say bonds totally up to 10 year, up to 1 to 10 year. If there is a debt security, we call this as the notes, as a notes। अगर ऐसी डेप्ट सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से 10 साल है, उसे हम नोट्स कहेंगे, और 10 साल के आगे जो डेप्ट सिक्योरिटी रहती है उसको बॉन्ड्स कहते हैं। मतलब अगर हम बाय डेफिनेशन जाए तो, पर ये थोरोली कॉल्ड, मतलब डायरेक्टली हम उसको बॉन्ड ही बोल देते हैं, भले 1 साल का हो या 10 साल का हो या 20 साल का। ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कितने टोटल पार वैल्यू के उन्होंने बॉन्ड इशू किए 5 साल के लिए, 750 मिलियन का। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड इशूड, कितने बॉन्ड्स इशू किए गए, 7,50,000 के आसपास। ओके, देन इंटरेस्ट रेट दिया है एनुअल 1.35 का, और सेमी एनुअल जो कूपन पेमेंट मिलेगा आपको हर 6 महीने में, वो मिलेगा $6.75 का, और मैच्योरिटी डेट दी गई। तो इस तरह से आपको ये डिटेल्स मिलते हैं जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो, फिक्स रेट बॉन्ड, वो भी ये भी ध्यान में रखिए। फिक्स रेट बॉन्ड जब आप खरीदते हो तो आपको इस तरह से उसकी डिटेल्स दिए जाते हैं, ये सब उसमें मेंशन होता है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिए। इसमें क्या है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो कूपन रेट है ये फिक्स होता है, ये बदलेगा नहीं, ये 5 साल तक उतना ही चलेगा, इतना ही रहेगा। द नेक्स्ट वन इज फ्लोटिंग रेट, मीन्स जो बदलेगा। अब जो फ्लोटिंग रेट है वो हर 3 महीने में बदलता है, मतलब हर क्वार्टर में नया रेट आएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा, हु इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट कुड बी द इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट। सो उसका फॉर्मूला है, यहाँ पर ओके, यहाँ पर तो नहीं है। ओके, तो ये फॉर्मूला है इसका, लिबोर प्लस, अब ये जो 140 बीपीएस दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं स्प्रेड। ओके, स्प्रेड। अभी जो लिबोर है इसका भी फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक, लंदन इंटरबैंक रेट से समथिंग है, उसका फुल फॉर्म देखता हूँ। ओके, तो ये जो लिबोर है ये स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स के लिए, जो हर इंटरनेशनल लेवल पे उसको फॉलो किया जाता है। तो वो रेट प्लस स्प्रेड, अब स्प्रेड पहले डिसाइड होता है, क्योंकि स्प्रेड डिसाइड होता है उस बॉन्ड के रिस्क पे, कि वो जो बॉन्ड है वो कितना रिस्की है, उस हिसाब से उसका वो स्प्रेड ये फिक्स होता है। स्प्रेड जो है वो पूरे 5 साल 10 साल फिक्स होता है, वो नहीं चेंज होता। सिर्फ ये लिबोर हर 3 महीने में चेंज होता है, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट उसके रेट्स आते हैं लिबोर के साइड पे। अगर आप चाहो तो आप सर्च करो लिबोर्स के बारे में, आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हमें 4 बार इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 1 2 3 4, और उस हिसाब से हम यहाँ पर हर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके, और हर बार का कुछ अलग आएगा, और फिर हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लोटिंग रेट का, ये 1 साल का बॉन्ड है बाय द वे,
मार्च का पहला क्वार्टर, जून का दूसरा क्वार्टर, सितंबर का तीसरा क्वार्टर और दिसंबर का चौथा क्वार्टर। ये 1 ईयर बॉन्ड के लिए इस तरह से पैसे आपको मिलेंगे। देन अब ये सब कैलकुलेशन है बॉन्ड्स के, और जो हमें अभी सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी। देन अदर वन, जो अगला टाइप है इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। अब ये फ्लोटिंग रेट का ही एक, यस मेगा, फ्लोटिंग बॉन्ड, ओके ओके ओके। मैं ये पहले कंप्लीट कर लूँ इन्फ्लेशन लिंक वाला। ओके, तो ये क्योंकि आखिरी है। तो इन्फ्लेशन बॉन्ड जो है, इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, इट इज सिमिलर और इट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ जो लिबोर हमने लिया था पिछली बार, उसकी जगह इन्फ्लेशन रेट रहता है। ओके, बॉन्ड्स वैल्यू इज एडजस्टेड विद द इन्फ्लेशन रेट। तो जो लिबोर आएगा, जो हमने यूज किया, उसकी जगह हम इन्फ्लेशन रेट चूज कर देंगे और उसके बाद उसको स्प्रेड, आगे उसका स्प्रेड लेंगे। ओके, तो ये इन्फ्लेशन पूरी तरह से, ये इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड है। जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बदलेगा उसी हिसाब से इसका भी जो इंटरेस्ट है, रिटर्न है, वो बदलेगा। ओके, या तो मैं क्या वाज सेइंग, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, या तो मैं कह रहा था कि जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, ओके, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में बदलता है मेगा, हर 3 महीने में। ओके, और जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट होता है लिबोर प्लस स्प्रेड। अब इसमें लिबोर का मतलब, लिबोर का फुल फॉर्म क्या है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। ओके, इट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। मतलब ये जब ये लिबोर सेट किया जाता है, ओके, ये ये सेट किया जाता है आईसीई के द्वारा। ये इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज बोलते हैं इसको, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। ये एक मैं कहूंगा एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है कि जो इसे लिबोर को सेट करती है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। अब ये जो है ये इंटरेस्ट रेट है, एवरेज इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ओके, थ्रू आउट दी वर्ल्ड वो उसको स्टडी करते हैं और वो ग्लोबली एक ऐसा इंटरेस्ट रेट वो बता देते हैं 3 महीने के लिए कि उसे बेंचमार्क की तरह लिया जाता है। ओके, तो हम उसको लेंगे लिबोर प्लस स्प्रेड। और स्प्रेड जो है वो रिस्क है हमारी। ओके, रिस्क है कि जैसे अब ले लो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया तो उसकी थोड़ी सी रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है, तो उसका में भी स्प्रेड जो है जो ज्यादा आ सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड का कम भी आ सकता है। ओके, तो ये स्प्रेड है। और अगर आप थोड़ा और सर्च करो इसमें, तो आपको ये जो स्प्रेड रेट है, मतलब स्प्रेड रेट, ये नॉर्मली इंटरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है इसको। इट्स एन एवरेज, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन एवरेज यील्ड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीव्स फ्रॉम लोन। मतलब कि जो लोन्स दिए जाते हैं, ओके, लोन्स दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, या मेगा एवरी 3 मंथ्स, मतलब हर 3 महीने बाद, हर क्वार्टर के लिए एक इंटरेस्ट रेट वो देंगे, लिबोर, सॉरी, लिबोर रेट वो रिलीज करेंगे। फिर वो एक्सेप्ट, वो कंपनी खुद एक्सेप्ट करती है उसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हम जैसे अब आरबीआई कोई इंटरेस्ट रेट बदल देगी तो बैंकों को तो वो लेना ही पड़ता है, तो उसी तरह से। अविनाश, कौन सा फॉर्मूला आप बोल रहे हो? यस अविनाश, इंटरेस्ट का
मतलब लिबोर जो करते हैं, लिबोर का। सर सुनिए ना, अभी जो यहाँ पे हम्म, वो कैलकुलेशन बताया हुआ है ना, तो जो 0.012 प्लस 0.0140, इसका वो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है कि वो 13,000 रुपीज आएगा, सॉरी 13,000 मिलियन। या वो वाला बोल रहे हो तुम? हाँ यस सर। अब देखो, वहां पर जो तुमने फॉर्मूला देखा है, मतलब 120 बीपीएस, ओके, और 1.20, 1.20, जस्ट गिव मी मिनट। ओके सर। या तो 120 बीपी, अब देखो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट आया है 120% है, वो जो दिख रहा है तुमको, यहाँ हाँ पर सर देखो दिख रहा है। हाईलाइट करता हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो 3 महीने है, पहला क्वार्टर, उसके लिए 120% वाला इंटरेस्ट रेट फाइनल किया गया है। अब ये फाइनल कैसे किया? जो लिबोर है उस वो हमने लिया है 120 पर, जो 1.20 है परसेंट, मतलब 120 बीपीएस। अब ये बीपीएस वगैरह कैलकुलेशन तुम लोग बैंक का दे सकते हो, 120 बीपीएस मतलब 1.20% जैसा। अब हमने क्या किया, अब इंटरेस्ट रेट जो है तुम्हारा, जस्ट गिव मी मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। ओके सर, ओके ओके।